आपने वो रोमियो का टीजर देखा है? हाँ पता है मुझे। हाँ पता है, शाहिद कपूर का कमबैक होगा। हाँ पता है, विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर की फोर्थ कोलैबोरेशन है। हाँ भाई पता है, ये बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है। क्या आपको वाकई पता है? लेट्स टॉक अबाउट इट। बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, ये लाइन टीजर में ब्लिंक एंड अ मिस थी, लेकिन ये चार अल्फाज एक पूरी दुनिया खोल देते हैं। तो मैंने खोदा, मैंने आर्टिकल्स पढ़े और जो मुझे मिला वो मूवी से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। O Romeo is the fourth collaboration between Vishal Bharadwaj and Shahid Kapoor. The first one was Kamine, which was a masterpiece. Then they made Haider, a national award level film. And then they made Rangoon, which I believe was an underrated gem. From the trailer, we see Shahid Kapoor's character in a pure western slash gangster avatar playing this maniac killer in a crime underworld. He falls in love with the character of Tripti Dimri. I'm thinking most probably the villain will be Avinash Tiwari or Nana Patekar or maybe both. The film will probably be set in the past. So what we have here is essentially a western revenge crossed with a true crime documentary filtered through a Bollywood melodrama directed by a Shakespearean author. I think it's genre fusion in its most literal sense. अब मैं जो भी कहूँगा take it with a grain of salt, क्योंकि ये सब चीज़ें कंफर्म नहीं है, बट आई थिंक स्टोरी यही होगी। शाहिद कपूर इज प्लेइंग द रोल ऑफ हुसैन उस्तरा। उस्तरा का नाम प्यार से नहीं दिया गया, ये नाम खून से मिला था। बचपन में एक लड़ाई में उसने अपने सामने वाले को एक रेजर उस्तरा से काट दिया था और फिर ये नाम उनके साथ जुड़ गया। हुसैन उस्तरा वाज वन ऑफ द ओनली पर्सन हु वाज एबल टू चैलेंज द एम्पायर ऑफ दाऊद इब्राहिम। यस, यू हर्ड मी, दैट दाऊद इब्राहिम। I'm sure he will be played by Nana Patekar. Dawood Ibrahim has been a very influential personality in India. Famously, he was the person who was accused of orchestrating the 1993 Bombay bombings. He had a very big influence on Bollywood. I mean, he was the inspiration for movies like Satya, Company, and Shootout at Wadala. नाम क्या है बे तेरा? साबिर इब्राहिम का। दाऊद इब्राहिम का। I mean, he was so feared, he had so much influence कि अगर एक एक्ट्रेस की फोटो उसके साथ आ जाती तो उसको काम मिलना बंद हो जाता था। At the same time, महमूद खान, विक्रांत मैसी was both husband to Sapna Didi played by Tripti Dimri and a worker for Dawood Ibrahim. For some reason, he was killed by the people of Dawood Ibrahim, पर वो मुझे नहीं पता। But his wife Sapna Didi हाथ पे हाथ धर के बैठे रहने की बजाय sought to take revenge. Now this isn't Kill Bill, this isn't John Wick. This is a real woman in 1980s India, a place and time where women had no influence, no power in underworld. इस दौरान उसने बहुत से लोगों को मारा भी और बहुत से लोगों को फोर्स भी किया, which ultimately made her a feared personality in crime underworld. At the same time, उसका being a criminal, वो डबल गेम खेल रहा था. He was working both as a transporter for Dawood Ibrahim and as a खबरी for police. वो पुलिस को दाऊद इब्राहिम के खुफिया इंफॉर्मेशन देता था। Eventually she teamed up with Hussain Ustra and they both decided to take down Dawood Ibrahim for good. But जो कि इस धंधे में होता है, सपना दीदी was eventually killed by some goons of Dawood Ibrahim. हुसैन उस्तरा भी अपने दिन गिनते गिनते दाऊद इब्राहिम के हाथों मारा गया। Now I believe this movie is based on the book written by S. Hussain Zaidi, who is also the writer of Black Friday and Mafia Queen. अच्छा, मजे की बात यह है, the story of Sapna Didi was actually narrated by Hussain Ustra himself to S. Hussain Zaidi, जिससे उन्होंने ये किताब लिखी थी। अब ये आदमी विशाल भारद्वाज का बड़ा ही करीबी फ्रेंड है, which has led me to believe कि मूवी की स्क्रिप्ट भी इसी बुक से ली गई है। Now I'm going to say I have a full belief that Vishal Bharadwaj is a master of storytelling. Adapting from a source material can be a bit tricky. It can be as good as Maqbool, or it can be as bad as Fantastic Beast. But Vishal Bharadwaj has always been on the good side. उन्होंने अपनी शेक्सपियर ट्रिलॉजी मकबूल से मैकबेथ, हैमलेट से हैदर और ओथेलो से ओमकारा बना के साबित कर दिया कि he is the master of adaptation. Recently got to know कि ये मूवी पहले इरफान खान और दीपिका पादुकोण के साथ बनाई जानी थी, and this movie could have been the second collaboration between Irfan Khan and Vishal Bharadwaj after Maqbool. But due to his ill health and eventually his demise, the script was shelved, the whole movie was shelved, और फिर विशाल भारद्वाज ने स्क्रिप्ट को रिवर्क किया और अब फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास 1 महीने बाद हमारे सामने होगा। द इंटरेस्टिंग थिंग वाज इन दैट मूवी द स्टोरी वुड हैव बीन टोल्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सपना दीदी, लेकिन अब मेरे ख्याल से ये स्टोरी हुसैन उस्तरा के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाएगी। ऑल्सो आई गॉट टू नो कि द रोल ऑफ अविनाश तिवारी वाज ओरिजिनली गोइंग टू बी प्लेड बाय रणदीप हुडा,
लेकिन उन्होंने ये रोल रिजेक्ट कर दिया और अब हमें उनकी जगह अविनाश तिवारी ये रोल प्ले करते दिखेंगे। और रूमर्स भी हैं कि हमें इसमें शायद अक्षय कुमार का कैमियो भी देखने को मिले। पर्सनली आई एम अ बिट फेयरफुल, पता नहीं क्यों। आपको सूर्या की रेट्रो याद है? क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है। मूवी का ओरिजिनल प्लॉट बहुत खूबसूरत था, बड़ा ही एक ह्यूमन और ब्यूटीफुल सा टॉपिक था, लेकिन मूवी के सेकंड हाफ में आते आते वो चोजन वन और वो ग्लैडिएटर बैटल वाली चीज ने मूवी को इतना ज्यादा एलिवेट कर दिया, इतनी ग्रैंड ले गई कि मूवी अपने ओरिजिनल प्लॉट को ही खो बैठी। वरना वो पारीवेल का वो स्माइल ना कर पाने वाला प्लॉट बहुत खूबसूरत था, बहुत प्यारा था। ये मूवी भी वही चीज ना करे, दे माइट जस्ट रिपीट दैट सेम थिंग। मुझे डर है कि ये मूवी अपने ओरिजिनल प्लॉट से इतनी ज्यादा ग्रैंड चली जाए कि मूवी अपना एसेंस ही खो बैठे। द पावर ऑफ दिस स्टोरी इज नॉट इन शोइंग देम एज हीरोज, इट इज इन शोइंग देम एज डेस्परेट, वायलेंट, morally complicated individuals who fought back against impossible odds and lost. That's tragedy, that's Shakespeare, and that's Vishal Bharadwaj at his best. ऊपर से शाहिद कपूर हमेशा स्टार बनते बनते रहा था। लेट्स टॉक अबाउट शाहिद कपूर फॉर अ मिनट। हमेशा मुझे ये लगता है कि अब तो ये स्टार बन जाएगा, लेकिन फिर कोई एक खराब मूवी करते हैं और फिर वो अंडररेटेड हो जाते हैं। आई मीन ब्रो हैज ऑलवेज बीन डिलीवरिंग गुड मूवीज। हैदर के बाद से, इवन दो हैदर वाज हिज बेस्ट वर्क, बट आफ्टर एंड बिफोर हैदर ही हैज ऑलवेज बीन गिविंग 100% इन हिज मूवीज। आप रिसेंटली देवा उठा के देख लें तो मूवी जैसी भी हो, बट द ओनली सिल्वर लाइनिंग इन द मूवी वाज शाहिद कपूर. He was the only saving grace on this movie. So there's this fear that even if Shahid is amazing in this film, which I think he will be, the movie is going to flop because that seems to be the curse that follows him. So will Romeo be good? I don't know. मैंने देखी नहीं है. But what I do know is it has all the ingredients. A director who understands adaptations, a cast who can deliver, a story that needs to be told, and a visual style that looks absolutely gorgeous. Whether ये सब चीज़ें मिलकर कुछ ग्रेट बनाती हैं या अपनी एग्जीक्यूशन में फेल हो जाती हैं, ये तो मूवी देख के ही पता लगेगा. तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है, ऑलमोस्ट 1 महीना ही है, और मे बी Shahid Kapoor will finally get the hit he deserves.